Chancellor's talk, where highly accomplished Vice Chancellors from reputed universities will be invited every month. This Kulguru Sambhasha is initiated by Vishwa Ayurveda Parishad, is curated with a vision to ignite inspiration and empower the Ayurveda fraternity with various new avenues to navigate excellence in Ayurveda clinical research and academics. The insightful discourse that will be shared by the experienced vice chancellors invited in the meeting will subsequently be shared with the Ministry of Ayush and CISF. This step is expected to open up new opportunities for developing new policies and revisions to the existing Ayurveda clinical practices, research, and teaching methods. Once again, a warm welcome to one and all to this momentous event, which is going to be a convergence of wisdom, vision, and transformative ideas. So let's begin this event by first of all seeking the blessings of Lord Almighty. I request Dr. Karthikeya sir for the Dhanvantri Vandana. शङ्खं चक्रं जलौका दधतमृतखडं चारुदोर्पिश्यते सूक्ष्म स्वच्छातिहृद्याल्शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाभोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलजगदवनप्रौढिदावान् Thank you, Dr. Karthikeya. Now, with the immense pleasure, let me invite the chief organizer and the visionary personality behind this entire concept of organizing this Kulguru Sambhasha, respected Dr. Tanmay Goswami sir, former Vice Chancellor, Sanskrit University, to grace us all with the welcome address. Good evening and a very warm welcome to the Kulguru Sambhasha, the Vice Chancellor's talk, organized by Vishwa Ayurveda Parishad. I, Tanmay Goswami, on behalf of Vishwa Ayurveda Parishad, I would like to thank all the teachers, students, and Vaidyas, and all eminent guests present for gracing this occasion of throughout for the thought-churning session this evening. I acknowledge Honorable Dr. Mahendra Munjparaji, the Minister of Women and Child Development and MOS Ayush, Government of India. I also do a hearty welcome to Honorable Cabinet Minister, Higher Education, Technical Education and Ayush, Madhya Pradesh, Shri Inder Singh Parmarji, sir, and Honorable Jayandev Pujari ji, who is Chairman of National Commission of Indian System of Medicine, who has brought a great reform to Ayurvedic education. This event, this session, which will give a lot of views and a lot of ideas how to develop next level for Ayurveda in education and its practical approach. We are going to have a wonderful knowledge from Dr. Vandana Mishra Chaturvedi, Honorable Vice Chancellor, D.Y. Patil, Dean to be University, Navi Mumbai. Dr. Abhijit H. Joshi ji, Honorable Vice Chancellor, Desh Bhagat University, Punjab, and Professor Arun Kumar Tripathi ji, Honorable Vice Chancellor, Uttarakhand University, Dehradun. The organization Vishwa Ayurveda Parishad is working to bring standards in education, in clinical practice, in research, and in all various practical fields of Ayurveda all over the India and across the globe. Under the guidance of Professor Yogesh Chandra Mishra ji,
who has guided us always to understand and get a better ideas. And also thanks, we welcome in the presence of President Professor Govind Shuklaji, General Secretary Professor Mahesh Vyasji, who is also backbone for all events, Joint Secretary Dr. K.K. Dwivedi ji, and for this event, who is always give his gracious advices and ideas and approaches, Professor Baldev Dhimanji, who is former Vice Chancellor of Sri Krishna Ayush University, Haryana, and Dr. Suren Chaudhary ji, National Secretary of Vishwa Ayurved Persia. I welcome and thanks everyone once again who have joined this session, because this session is very important for all those who are fraternity of Ayurveda, who are the students, who are the teachers, and who are the practicing doctors and research scientists. Very good evening to all, and hope this event will bring some very good ideas and approaches to further make wonderful milestones in the field of Ayush. Thank you. Thank you, sir. Now, moving ahead, I take this pride privilege to invite a very respectful Professor Yogesh Chandra Mishra, sir, Rashtriya Sangathan Sachiv, Vishwa Ayurved Parishad, to give a brief information regarding Vishwa Ayurved Parishad activities and initiatives. का यार अंतर्गत पंद्रह करा नहीं करता पता चलेगा था धन्यवाद डॉक्टर निकिता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। विश्व आयुर्वेद परिषद के आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा जी, मंत्री महिला एवं बाल विकास तथा आयुष विभाग, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित डॉक्टर इंदर सिंह जी परमार, केंद्रीय या कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन, गेस्ट ऑफ ऑनर वैद्य जयंत पुजारी जी, चेयरमैन NCISM। आज जिन कुल गुरुओं ने अपना मार्गदर्शन के लिए हमको अपना समय देने की कृपा की है, ऐसे I think Dr. YC Mishra's connection is lost. कुछ सिग्नल प्रॉब्लम हुआ है. So, Nikita ji, you can proceed and we can continue as soon as Yogesh Mishra ji joined us. एक बार 1 मिनट देख लेते हैं जी. और नहीं तो आगे प्रारंभ करते हैं। गुरु जी का शायद सिंगल नहीं मिल रहा है नेटवर्क। तो जैसा कि गुरु जी अभी बता रहे थे विश्व आयुर्वेद परिषद के बारे में कि ये जो कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है, विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा 14 संभाषाएं, 14 विषयों की, एक अनुसंधान की और एक इंटरनेशनल जो विदेश विभाग है, अलग अलग देशों की हम हर महीने एक संभाषा करते हैं कि उस देश में आयुर्वेद का स्टेटस क्या है। तो इस प्रकार से 16 संभाषाएं नियमित रूप से चल रही है और आज हम सब एकत्रित हुए हैं 17वीं संभाषा के उद्घाटन समारोह के लिए। और इस उद्घाटन समारोह में ये जो संभाषा है ये कुल गुरु संभाषा, इसका नाम दिया है वाइस चांसलर टॉक। और हर महीने विविध विश्वविद्यालयों के, पूरे भारतवर्ष में जितने विश्वविद्यालय हैं उनके माननीय कुलपति जी अपने विषय को रखेंगे। और इस संभाषा का मुख्य उद्देश्य यह है कि आयुर्वेद की शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में हमको और क्या करने की आवश्यकता है। तो माननीय कुलगुरुओं का आज जा रही है, ये कुलगुरु संभाषा है।
और इस संभाषा में आज हमारे साथ में पूरे भारतवर्ष से, अंडमान निकोबार से लगा करके मुंबई तक, या फिर शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट शिलोंग से लगा करके गोवा तक, पूरे भारतवर्ष के विश्व आयुर्वेद परिषद के पदाधिकारी और विश्व आयुर्वेद परिषद के सदस्य, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य महोदय और कई विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि अभी प्रारंभ में बताया था कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय 3 कुलपतियों का हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उसमें DY पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई के माननीय कुलपति हैं, जो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी हैं, और साथ में पंजाब से, मोहाली से, देश भगत यूनिवर्सिटी से उनके माननीय कुलपति जी हैं। तो इस प्रकार से प्रति माह उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। तो आज का ये कार्यक्रम कुलगुरु संभाषण के रूप में है। तो इसके साथ ही हम सभी का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और आज पूरे भारतवर्ष से इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे महानुभाव जुड़े हैं, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से हमारा जो प्रयोजन है, जिस ध्येय को लेकर के हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से वो पूर्ण होगा। डॉक्टर निकिता जी। Thank you so much, sir, for providing this brief insight regarding the Vishwa Aayurved Parishad activities. And now let us move to that moment where the valuable insights from our invited guest, the accomplished vice chancellors from reputed universities, will be invited to share their insights. I request Dr. Aishwarya to introduce the guest speaker, and I request the vice chancellors to share the views and opinions in a brief, crisp, and in a nutshell. Dr. Aishwarya. Thank you, ma'am. It is my pleasure to introduce Dr. Vandana Vishra, ma'am, who is a seasoned academician with 23 years of rich experience in the education domain. Throughout her career, she has demonstrated a strong commitment to upholding the university's mottos, building on student value, streamlining the academic operations, and driving revenue growth while working with reputed institutes. She has always demonstrated a strong commitment to academic excellence and innovation. As a clean planner and implementer, Dr. Mishra has a track record of implementing operational policies, systems, motivational schemes, and enhancing the educational standard during her career span. Under her leadership, the University of DY Patil, Navi Mumbai has undergone the national accreditation and assessment and achieved the highest grade of A++. So her leadership and guidance have helped to transform the DY Patil University into world-class institution for its cutting-edge research, outstanding facilities, and innovative programs. So I would like to request ma'am to kindly share her presentation. Good morning. Yeah, hi. Very good evening. Can you all hear me? Yes, ma'am, you're audible. Yes. Ma'am, kindly unmute yourself. Can you hear me now? Yes, ma'am. Thank you. Very good evening to the respected honorable vice chancellors and the dignitaries who are present here today for this great initiative that the Ayurveda fraternity has taken. And it is about having, on one platform, have all the dignitaries and the vice chancellors come together and discuss on the growth of, how Ayurveda today can further grow. So with regards to that, I would like to take this opportunity to express that, Ayurveda is a very growing field today. And in order to enhance the education system in the Ayurveda, it is very, very important that the first most important aspect is that we have a very strong IQAC in every university. And that IQAC plays a major role. When I say a major role, I mean to say that IQAC initiates such activities where the feedback mechanism of this organization of the university is very strong. It is very important for all of us to understand that the stakeholders, that is the students, the industry, the parents, we ensure that we take the feedback from our stakeholders and understand that what is it that they require in order to understand the
Ayurvedic education. Having said that, I understand that IQAC gives great thoughts and ideas in order to ensure that there is quality education. And when we have such implementations done, it will ensure that quality education is imparted in the education system. We at the D.Y. Patil University have a very unique concept of teaching medicine to students. And we at the D.Y. Patil University have a simulation center. Sir, I would like to emphasize that we are the first. Sir, can you hear me? Yeah, now you're audible. Yeah. Okay, so I would like to say that D.Y. Patil University has a simulation center which is utilized for imparting education, especially the healthcare education to students. So if this simulation labs or a simulation teaching methodology can actually be implemented in the Ayurveda as well, it will be a great way of making a change in the education system. And today it gives a practice to the students. Before they actually practice on human beings, they are actually practicing on simulators. So that's a great initiative. And also that they get to understand the concepts much clearer, because the practical training is done on simulators. Another very important aspect that I believe, which is very close to my heart, and I have been discussing it with my Honorable Dean, Dr. Mahesh Harith, is that Ayurveda also, like, any other field, has great manufacturing and innovation involved into that field. So if along with the teaching, if we can have a lot of innovation and research involved into the Ayurveda field, I feel that the students will find it very, very interesting to study the Ayurvedic education. Having said that, I would like to take this opportunity also to say that the D.Y. Patil University's Ayurveda Hospital is the first and only Ayurvedic hospital which is NABH accredited. Having said that, I would like to take this opportunity to extend a heartiest invite to all the honorable members to take out time out of their busy schedule, and if they can make to the D.Y. Patil School of Ayurveda, it will be a wonderful experience, I'm sure. And having said that, we also want to emphasize that the teaching methodology that is adopted at the D.Y. Patil is very, very different. We make sure that simulation games, case studies is very, very important. And also Dr. Mahesh Harith recently started a teaching methodology wherein students were actually shown live operations that were actually happening in live operations, live surgeries, and the treatments that were actually happening in the hospital. The first year and second year students were actually made to sit in a virtual classroom, and they could see the live telecast of how patients were treated. So I understand that gives a great, immense learning opportunity to first year and second year students as well. So there is no end to making the teaching methodology innovative. I had these few ideas, sir, which I thought I should share with the other members. Also, I would like to congratulate and say that having the presence of Honorable Minister, sir, makes it all the more so very important, that how important Ayurveda today is. So with folded hands, a big thank you to the Honorable Minister for joining this session, and thank you to all the dignitaries for giving this opportunity. I would not take much of your time because I know there are a lot of speakers and everybody wishes to speak. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Let me extend my heartfelt gratitude to you for sparing your time for this webinar and giving your highly remarkable insight and giving new ways of bringing this Ayurveda and the status of Ayurveda in this context also. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yogesh Chandra Mishra sir has again joined us. So may I please invite Yogesh Chandra Mishra sir to take over this platform. I can see Yogesh Chandra Mishra sir. May I please request you, sir, to please interact with us?
Okay, meanwhile, let me invite our next guest speaker, Honorable Vice Chancellors of Desh Bhagat University, Punjab, respected Abhijit Joshi, sir. So before inviting sir for his remark, let me give a brief introduction of his achievements. Sir is an academic genius and illustrious researcher in the field of Sanskrit, Ayurveda and Yoga. He is a Vice Chancellor of Desh Bhagat University, Govindgarh, Punjab. Born and brought up in the rural areas of Sangli district of Maharashtra, he passionately pursued his education and got his BMS. Later, he acquired his PhD, 4 DLit, and 3 postdoctorate from various renowned national and international universities. He has extensive teaching, research, and administrative experience. Ayurveda Samhita Siddhant, Devyapashra Chikitsa, formative study of Indian dietary systems and its relevance with the modern lifestyle in yoga for healthy living are his research interest areas. He is a great visionary to think what nobody else has thought, and for this reason, his research is innovative in true sense. He has been working on several government bodies such as UGC, NAC, CCRS, AICT, etc., as well as on non-government bodies in capacity as a research expert and advisor. He is also holding various key positions on different boards and committees of 11 national as well as international academic institutions and universities. He is a recipient of many prestigious awards and honors. To name a few are Maharishi Badrayan Vyas Samman Presidential Award, Harvard University Global Systems Award, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan National Award, Aryabhat Award, Pride of India Honor, Maharashtra Gaurav Samman, Bharat Kirtiman Alankar, etc. Sir has also published many research papers and articles in various national and international conferences and has authored 14 books. Sir has also traveled in more than 7 countries for academic and research purpose. So, sir, we are very blessed to have you on this platform, and I request you to please begin with your deliberation. नमस्कार माननीय मंत्री महोदय जी, विद्यमान उपस्थित कुलपति महोदय जी और सभी आयुर्वेद के महानुभाव, मैं ये सौभाग्य मेरा मानता हूं कि आज ये प्लेटफॉर्म पे मुझे आने के लिए मिला। एक बात ऐसी है कि पिछले लास्ट 25 years आई एम इन एकेडमिक फील्ड, इन विच last 13 years I am working with academic administrator in various universities in key position. That universities are general universities, and right now I am Vice Chancellor in Desh Bhagat University, Mandi Govindgarh, Punjab. This is the general university and I am Vice Chancellor over there. NAC, UGC, जनरल यूनिवर्सिटीज, इसका पूरा मैं सफर करके आयुर्वेद के इस मंच पे आज कुछ मेरे जो व्यूज है वो शेयर करना चाहता हूं। इसमें 3 पार्ट अलग अलग रूप से किए जाएंगे। पहला है एकेडमिक, दूसरा है रिसर्च एंड तीसरी बात यह है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैडम ने अभी IQSC की बात कही कि जो NAC के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं जो आज एकेडमिक की बात कर रहा हूं, आई विजिटेड n number of universities as a NAC for NAC accreditation process as a NAC assessor, of course general universities. And right now the most important thing, and what we the Ayurveda people or Ayurveda universities to adopt one most important thing, that is National New Education System and IKS. आयुर्वेद के लिए ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण है। जनरल यूनिवर्सिटी में आज चॉइस बेस्ड सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम एंड IKS से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ गई है। बहुत सारे हम टॉपिक दे चुके हैं, इसके लिए स्वयं MOOCs ये सभी आ रहा है। बट आयुर्वेद के जितने भी आज यूनिवर्सिटीज है या आयुर्वेद के जितने भी हमारे कॉलेजेस है, उसमें ये विषयों का अंतर्भाव करना मुझे ज्यादा जरूरी लगता है, क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म न्यू एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हमें मिला है।
तो संस्कृत है, बॉटनी है, जो आयुर्वेद से, फार्मेकोलॉजी है, जो आयुर्वेद से रिलेटेड बाकी जो सभी ब्रांचेस है वो इसमें आ सकते हैं। जैसे कि चॉइस बेस के लिए आज हमें बहुत सारी उपलब्धियां है, और एज ए यूनिवर्सिटी हम यदि ये हमें स्वायत्तता दी गई है, तो इन स्वायत्तता के माध्यम से हमारे आयुर्वेद यूनिवर्सिटीज में और हमारे आयुर्वेद के कॉलेजेस में यदि हम मैंडेटरी या फिर चॉइस बेस के लिए रखते हैं तो सभी लोगों के लिए इसका फायदा होगा। आज ये एनईएस के माध्यम से जो जनरल यूनिवर्सिटीज है, ये जनरल यूनिवर्सिटीज में हमने 1 या 2 क्रेडिट के लिए शॉर्ट टर्म योगा के कोर्सेज या आयुर्वेद के जितने भी कोर्सेस अवेलेबल शॉर्ट टर्म होंगे वो हमने आज प्रस्तापित किए हैं। तो ये भी हम एक बड़ी अच्छी तरह से डिजाइन करके ये कर सकते हैं। और स्वयं और मूक्स ये आज सभी जगह पे जो चल रहा है, यूजीसी जिसके ऊपर फोकस कर रही है। आज हमारे भारत में यूजीसी से अंडर लगभग 1138 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट प्राइवेट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। उसमें ये सभी योजनाओं का एंड रिसर्च के लिए इसका उपयोग मिल रहा है, तो हम इसे अडॉप्ट करना चाहिए। नंबर 2, मैं जिस बात पे आज सभी जगह पे चर्चा हो रही है, दैट इज द रिसर्च। And research is the key, and research is the most important thing in all over India, all over world. But the main focus and main thing on research जहां हम कम हो रहे हैं, इसके 2 मैं सिंपल रीजन आपको बताना चाहता हूं। जो आयुर्वेद के रिसर्च पेपर इतने पब्लिश होने के बाद, नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश numbers are too large, बहुत ही लार्ज नंबर पे पेपर आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज that is not as per the requirement of national international research tools. The most big factor in that is our sample size. So sample size. Sir, you are muted. Please unmute yourself, please. सर आप म्यूट हो गए या? Hello, now audible? Yes. Yes. Yeah. So the most important thing as considered to the international research platform is our sample size, because the research paper, research project, the sample size, whatever we are thinking and whatever we are adjusting, that is the most problematic thing. So sample size as per medical science is considered, as per the prevalence rate of the disease, the formulas and everything is fixed, but that paper is not on that mark. So in considering the universities and all these things, with statistician, biostatistician, हम sample size को अच्छी तरह से fix करेंगे। एंड और एक चीज मैं यहां बताना चाहता हूं, जब हम जनरल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो जनरल यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद के साथ जितने जितने भी साइंस के डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट अवेलेबल है, उन सभी डिपार्टमेंट को हम एक साथ लेके रिसर्च करेंगे तो ही रिसर्च ऑथेंटिक होगा एंड वही रिसर्च को अभी मान्यता प्राप्त होगी। जैसे कि वेरी सिंपल थिंग है कि और जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उन्हें भी ये कैसे पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि क्या है, प्रशस्ति की गई है, बट ये किसी ने कभी भी नो वन इज आइडेंटिफाइड व्हाट इज इन दैट विद द हेल्प सर आप अनम्यूट करिए। प्रोफेसर जोशी जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए हैं। प्रोफेसर यू आर म्यूट, आप अनम्यूट करिए।
Yeah, I'm on mute. Yeah, now you're audible. Yeah. Yeah. So, with the help of these laboratory investigation, the surprisingly result we will find. So, this is the key. Everything which is in the Ayurveda, which is described by our acharyas 2, 3, 4,000 years back, now it is proven by this science. And for the student purpose, this is the most important and most valuable thing for the future in the Ayurveda, but very authentic. This is the key. And the research projects which we are taken in the colleges and other institutes, with the help of, now audible? Yes, now you're okay. Go ahead, sir. With the core science department, biochemistry, microbiology, and all this, with the help of this department, जहां जहां ये डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है वहां ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो इसका लाभ और इसकी जरूरत हम सबको आ जाएगी. And number third, what madam is described about the for the purpose of accreditation, academic administration is most important as my point of view. What is the academic administration? What you are done and what you are doing, that the data should be collected and data should be presented. Because in that section, we are डिस्टर्ब आ रहा है बीच बीच में. There is little bit disturb. It's just because of network problem, I think so. From my side or? नहीं सर, डॉक्टर मोहम्मद बिल्कुल क्लियर है, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए. Yeah. So, what is in NAAC accreditation? I went a number of university as assessor. So innovation content, the maximum marks in accreditation is for the innovation. What innovation you are accepted? 30 marks right now, and in आगे भी उसके लिए ज्यादा मार्क्स आएगा. तो आयुर्वेद के लिए इनोवेशन, सब कुछ इनोवेशन है. मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल के रूप में एक प्रयोग किया था कि जो फर्स्ट ईयर के आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के लिए जो अष्टांग हृदय सिखाया जाता है, अष्टांग हृदय का जो अध्याय जो पूरे है, तो मैंने एक सिस्टम सुबह लगाई थी कि ये सभी अध्याय जो है ये बच्चों से, स्टूडेंट से बाय हार्ट करे. और स्टूडेंट, एक मेरे लिए दिक्कत थी इसमें कि इन माय यूनिवर्सिटी, in first of Ayurveda, there are 12 states, different 12 state students. They don't know about the Devanagari. Then how they chant that all this. But right now, 10 Adhyay they are chanted, and that is just NAAC is visited in my university. So they said this is the very innovative thing that you are adopted. So this is just I am sharing with you the snap of that particular audio. डॉक्टर साहब कंटिन्यू करिए. ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, कंटिन्यू करिए आप. आप ऑडिबल नहीं हैं. Voice is not audible. Your voice is not audible.
Actually, he is trying to This is share what some maps. technical. This is what technical error. So 100 students from 12 different states, they are chanting city. And then about the my last point, because there is a lot of disturbance, I think. So my last point is about the Sanskrit. So each and every university is not having the Sanskrit department, but the entire knowledge in Sanskrit. But if you are having English department, if you are having a botany department, if you are having a pharmacognosy department, then there are lot of books now are available which are in manuscript form and not translated yet into English language or acceptable language. They that are in Sanskrit, either in Sanskrit or in Prakrit or in local languages of that particular state. So what IKS and as per our new education system and as per our better future, so that books or that manuscripts has to be transferred into accepted language, that is in English, and which may be available which in a single click. So I started that because ये जर्नी तो बहुत है यानी हर एक को करना है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वहां इंग्लिश आपके लिए होगा, संस्कृत आपके लिए होगा, और जो भी बड़े प्रोफेसर लोग हैं वो इसे हेल्प करके, वो टेक्निकल टीम आपके साथ रहती है, तो ये सभी करके हम इसका प्रयोग करके हम ये बुक्स यदि पब्लिश करते हैं तो आयुर्वेद के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो जो मैंने आज तक जर्नी की है, जो मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज देखी है, और मैं आज जनरल यूनिवर्सिटी में ही रहता हूँ, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, रिसर्च, ये आयुर्वेद के लिए पॉसिबल नहीं है। बट जो ये सब चीजें हम करना चाहते हैं, आज बाकी सभी जगह में इतना रिसर्च का काम हुआ है, आईआईटी से लेके लोकल कॉलेजेस तक, टेक्निकल में हो या और किसी में हो, इतना काम हुआ है कि अभी थोड़ा बहुत ही बचा है। लेकिन आयुर्वेद के लिए आज रिसर्च की शुरुआत हो गई है, तो हमें बहुत कुछ करना है, और आयुष मिनिस्ट्री की सहायता से, CCRS की सहायता से, only thing is by accepting international research tools. That is the most important thing. So that's it from my side. Thank you very much. Thank you, Dr. Thank you so much, sir. On behalf of Vishwa Ayurveda Parishad, our sincere thanks for your invaluable insights and your year-long experience, and the various ideas and the opinions that you have shared with us is highly inspiring and motivating. Your dedication of advancing this Ayurveda is truly inspiring, and we are again very grateful to you, sir. Thank you so much once again. Now moving ahead, it is a great privilege and opportunity for each one of us to have with us respected Jayant Dev Pujari sir, Honorable Chairman of NCISM. Sir, you are requested to interact with us and enlighten us all regarding the various innovations and the ideas which we can do, and your suggestions also to the respected Vice Chancellors of the universities. You are requested to please begin with your talk, sir. Nikita ji, I think Dev Pujari sir has left. Shall we invite the next speaker, or should we wait for some time? जब वो आएंगे तो दोबारा उनको ज्वाइन करेंगे। आप नेक्स्ट स्पीकर को ले। जयदेव जी जब तक ज्वाइन करते हैं तब तक आप वैद्य रामतीर्थ शर्मा जी को बुला लीजिए परिषद गीत के लिए, फिर जयदेव जी को बुलाइए। जयदेव जी जुड़े हुए थे, शायद डिस्कनेक्ट हो गए। फिर आप अनम्यूट करिए निकिता जी। Now, as Vyasar has already announced, may I once again request Dr. Ramtirth Sharma sir, Sangathan Sachiv Vishwa Ayurveda Parishad and faculty member of Government Ayurveda College Ujjain for the Parishad.
रामतीर्थ जी अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। रामतीर्थ जी हैं, बट आई थिंक कुछ उनके साथ भी आज प्रॉब्लम लग रही है। डॉक्टर रामतीर्थ जी, आप अनम्यूट हैं करें। लेकिन वो हाँ, जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं वो। जी जी, डॉक्टर रामतीर्थ जी, आप अनम्यूट करके परिषद गीत प्रारंभ करें। स्टार्ट करें भाई साहब? जी 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 एम आई ऑडिबल? जी। सभी सुखी हो, सभी निरामय, हम सेवा संकल्प न भूलें, स्वास्थ्य साधना के हम साधक, शील विनय व्यवहार न भूलें, सभी सुखी हो, सभी निरामय, राज्य स्वर्ग की नहीं कामना, नहीं मोक्ष की चाह हमें है, दुख से पीड़ित आरत आहत, बस इनकी परवाह हमें है, सबल राष्ट्र हो, स्वस्थ जगत हो, स्नेहामृत का स्वार न भूलें, शील विनय व्यवहार न भूलें, सभी सुखी हो, सभी निरामय, माना व्याधि अगाध अगम है, इससे नहीं सरल है, पहला सुख रोगी काया, चाह प्रबल है, कठिन चुनौती मार्ग कंटकित, साहस धैर्य अपार न भूलें, शील विनय व्यवहार न भूलें, सभी सुखी हो, सभी निरामय, करुणा दया शुचिता, हृदय प्यार झंकार भरा हो, कार्य कुशलता ज्ञान विशदता, पुलकित मन में नेह भरा हो, सृजन शक्ति सद्भाव समन्वित, वसुधा का श्रृंगार न भूलें, शील विनय व्यवहार न भूलें, सभी सुखी हो, सभी निरामय, आधि व्याधि का घर जो यह तन, बने ईश का विग्रह सुंदर, भरे कल्पना भाव अनगिनत, लक्ष्य प्राप्ति का साधन सत्वर, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, सेवा श्रम उपकार न भूले, शील विनय व्यवहार, सुखी हो, सभी निरामय, हम सेवा संकल्प न भूलें, स्वास्थ्य साधना के हम साधक, शील विनय व्यवहार न भूलें, सभी सुखी हो, सभी निरामय। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि 1, 2, 3 मिनट का और समय रहेगा, तो तब तक के लिए
प्रोफेसर अभिजीत जोशी जी, आपको हम जब सुन रहे थे तो आपकी कुछ बातें बड़ी प्रासंगिक लगी कि जब रिसर्च कुछ इस तरह से भी हो जो आयुर्वेद में भी हो, और आयुर्वेद के साथ में जो आयुष के जो विभाग हैं, यदि हम लोग कुछ ऐसा कर लें कि आयुर्वेद और जो योग है, यूनानी है, सिद्धा है, इनके बीच में भी यदि हमारा एक समन्वय और मिलकर के कुछ कार्य हो, हेलो। तो वो हाँ अच्छे विकास। अच्छे डेवलपमेंट की तरफ वो जा सकते हैं। तो ये जो जितने भी कुलपति गण हमारे बीच में, हमारे जो आयुर्वेद के क्षेत्र में हैं, हम सभी लोगों को एक ऐसा एक विचार करके, एक मंथन करके सभी लोगों को एक ऐसा विचार देना है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है आजकल के अध्यापक गण और विद्यार्थी। अध्यापकों को हम कैसे करके आज के परिवेश में एक ऐसी इस जो एनसीआईएसएम की जो शिक्षा प्रणाली, जो इस समय पर जो एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म हुआ है, अभी आदरणीय जैन जी, देव पुजारी जी इस बारे में मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे, तो उसको हम लोग कैसे और प्रैक्टिकली और इवॉल्व करें, और कैसे हम लोग और इसको एक ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर लेके आए कि जो एक तरह से जो स्टूडेंट्स जो बाहर आए पढ़ करके, वो जब चाहे वो प्रैक्टिस करें या वो बाद में इफ दे कम अगेन इन मेडिकल प्रोफेशन एज ए फैकल्टीज, एज ए टीचर, तो इसके ऊपर ये जो एक उद्देश्य है हमारा विश्व आयुर्वेद परिषद के इस मंच का, ये वाइस चांसलर टॉक, तो हम लोग आपके द्वारा जो आज जो पॉइंट है, इन पर हम लोग काफी विचार करने योग्य पॉइंट आपने दिए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वंदना मिश्रा जी, आपका भी जो आपने जो तमाम जो विषय रखे हैं सामने, आदरणीय जयंत देव पुजारी जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निकिता जी, जी, पर चेयरमैन सर को बुला लीजिए। आदरणीय ऑनरेबल जैन देव जी पुजारी जी, आपका स्वागत है, और हम आशा करते हैं कि आप अब अपना ज्ञान हम सभी को देंगे। प्लीज डॉक्टर निकिता जी। निकिता जी, आप हम Honorable सबके हाँ चलिए शुरू। Dr. Jain Dev Pujari sir, you are cordially welcome to this event, and we are very highly grateful. You are requested to please motivate us and inspire us with your innovative and impactful ideas. So you may begin. सभी मान्यवर कुलगुरु कुलपतियों को मेरा विनम्र अभिवादन। मैं सर्वप्रथम इस प्रकार सभी वाइस चांसलर को एकत्रित लाने की जो कल्पना उन्होंने प्रत्यक्ष में साकार की है, उसके लिए वो सच में अभिनंदन के पात्र है। इस लेवल पर जो चर्चा होनी चाहिए उसकी जो एक शुरुआत है, वो बहुत अच्छे प्रकार से विश्व आयुर्वेद परिषद ने की है। इसलिए मैं सभी जो आयोजक है उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। अभी जो कुछ हमारी चर्चा चल रही है वो यूनिवर्सिटी के लेवल पर क्या क्या करना चाहिए, इस प्रकार से चल रही है। इसके बारे में कमीशन की क्या अपेक्षा है सभी कुलपतियों से, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम दो चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और सोवारिकपा के जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो कमीशन के माध्यम से तय किए जाते हैं, लेकिन वो मिनिमम है। उसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप सब लोगों ने चर्चा करनी चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। उसका जो उपयोग है वो हमको जो रेटिंग आने वाला है महीने 2 महीने में, उसमें बहुत ये काम में आएगा। और हम लोग उसको कहते हैं कि एक कदम आगे, यानी एनसीआईएसएम के जो है वो जो स्टैंडर्ड्स है वो मिनिमम है। तो जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटीज है उन्होंने उसके एक कदम आगे चलना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा रहती। तो ये एक कदम आगे को डिफाइन करने का काम आप लोगों का है। और दो चीजों की तरफ मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि एक एग्जिट टेस्ट अभी हमको कानून के हिसाब से
अगस्त 2024 के पहले ऑपरेशनल करनी है, और दूसरा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी ऑपरेशनल करनी है। एग्जिट एग्जाम जो है वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, और उसके आधार पर ही उनको रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है। जो एग्जिट एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे पहले झटके में, दूसरे झटके में, तीसरे झटके में, तो वो महज ग्रेजुएट रह जाएंगे, वो आयुर्वेद की नहीं कर पाएंगे। होता है कि ये प्रैक्टिस छोड़कर फिर उनको पीजी को भी एडमिशन नहीं मिल सकेगी। वो अन्य किसी विषय में एमबीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, और जो कुछ भी करना है उनको वो कर सकते हैं, और बाकी एग्जामिनेशन में बैंक, LIC इसमें कर सकते हैं, लेकिन वो कभी वैद्य नहीं बन सकते, वो कभी प्रैक्टिशनर ही बन सकते, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाए। अब यह जो एग्जिट एग्जाम है वो तो साल में 2 बार होने वाली है, लेकिन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ये साल में 1 ही बार होने वाली है। तो इन दोनों का अर्थ ऐसा है कि हमारे यूनिवर्सिटीज की जो परीक्षा की पद्धति है वो हमको स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी, और वो सभी की जब एक साथ होगी तब विद्यार्थियों पर अन्याय नहीं होगा। नहीं तो ये होगा कि आपकी जो परीक्षा है वो 1 महीना देरी से हो रही है, और उसके 1 महीना पहले यदि एग्जिट एग्जाम हो रही है या तो वह नुकसान है, 1 साल खराब जाने का, बेकार जाने का, वो उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज की तय होती है, क्योंकि इसका जो कैलेंडर है वह तो वैसे भी एकेडमिक कैलेंडर NCISM ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, और उस पर अमल ये 2 परीक्षाओं के कारण हम सभी को करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि NCISM का जो भी एकेडमिक कैलेंडर है उसको आप, रेगुलेशन में है उसको आप देखिए, और आपकी जो परीक्षाएं हैं उसके अनुकूल जो है वह होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है जो विशेष रूप से कॉलेज की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी को उसकी जानकारी होनी चाहिए। वह यूजी और पीजी विद्यार्थियों के लिए कुछ CCRS के साथ मिलकर स्कॉलरशिप्स दी जाती है। यूजी के विद्यार्थियों को 50,000 रुपए दी जाती है, 200 बच्चों को दिए जाते हैं देश भर के, और पीजी के डेजर्टेशन के लिए 100 बच्चों को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब इसके साथ साथ उसका हैंड होल्डिंग यूनिवर्सिटी कैसे कर सकती है, इसके बारे में यूनिवर्सिटी में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये इनकी संख्या भले ही 100 होगी या यूजी में भले ही 200 होगी, लेकिन ये आगे चल के हमारे क्षेत्र का भविष्य निश्चित करने वाले ऐसा हैंड होल्डिंग है प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से यदि यूनिवर्सिटी के लेवल पर होगा तो उसका फायदा होगा। यूनिवर्सिटी के जितने भी वाइस चांसलर है उनको और मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि आने वाले रेगुलेशन में हर कॉलेज में एक रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का सेल रहेगा, ऐसा कहा गया है। अब ये सेल के लिए कोऑर्डिनेटर रहेगा, ये जो कोऑर्डिनेटर है वो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रहेगा। तो उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं ये हम भी जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो कैसे सोचेगा। तो इसलिए उनका जो ट्रेनिंग है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MSME हैदराबाद में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और साल भर में हम लोग करीब करीब देश के सभी कॉलेजेस में एक जो व्यक्ति है वह व्यक्ति ये ट्रेनिंग लिया हुआ रहेगा, और ये लोग ये इंक्यूबेशन इनोवेशन सेल जो है इसको चलाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। अब आपके यूनिवर्सिटी में यदि एक ही कॉलेज है तो ये आपके लिए आसान है, लेकिन 10 कॉलेजेस है समझिए, तो ये 10 कॉलेज के ये जो 10 लोग हैं उनका हैंड होल्डिंग आप कैसे कर सकते हो ये रिसर्च और इनोवेशन के लिए, ये भी आपने देखना चाहिए। अभी हमारे जोशी सर जब बात कर रहे थे तब वो रिसाइटेशन की, पाठांतर की, बाय हार्ट, श्लोक बाय हार्ट करने की बात कर रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूजी के सिलेबस में ही हम लोगों ने इसको कंपलसरी कर दिया है कि हर प्रोफेशनल में उसको कितने श्लोक याद होने चाहिए, इसका हमने नियम बना दिया है। अब नियम बना के हम लोग रुके नहीं, इसको रेटिंग में भी डाला है। तो बाकी हम लोग देखते हैं कि बाकी सब चीजों की रेटिंग के बारे में चर्चा होती है रेटिंग में,
लेकिन इसकी भी चर्चा होगी कि उसमें से कितने विद्यार्थियों को ये श्लोक जो है ये एट हार्ट मालूम है। तो इसलिए ये जब रूटीन में चीजें हो जाती हैं तब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूनिवर्सिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस प्रकार इसका जो उपयोग है, जैसा सर बता रहे थे कि उसको इनोवेशन माना गया, हमने तो कंपल्शन कर दिया है। तो इसको भी हम लोगों ने थोड़ा देखना चाहिए। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा गूगल फॉर्म, 2 गूगल फॉर्म के पीछे एक लॉन्च किए थे और विशेष रूप से शिक्षकों के लिए था, वो प्रैक्टिशनर के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी था, लेकिन उन तक अभी पूरे यशस्वी ढंग से हम लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन शिक्षकों तक पहुंचे। उसमें हमारे ध्यान में आया कि 250 के आसपास शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास पेटेंट है और उसमें भी 50% शिक्षक है, 100 से ज्यादा शिक्षक ऐसे, 125 से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास इंस्ट्रूमेंटेशन पर पेटेंट है, न सिर्फ दवाई। अब इसके बाद में, ये पहला प्रयोग होने के बाद में, हम लोगों ने जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया है लेकिन अभी तक पेटेंट लिया नहीं, ऐसे लोगों को आह्वान किया था कि वो गूगल फॉर्म भरे। तो करीब 168 ऐसे हमारे पास शिक्षक है जिन्होंने काम तो किया है लेकिन पेटेंट नहीं लिया। अब ये जो सभी शिक्षक हैं आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और जो 250 लोग हैं उन्होंने तो पहले पेटेंट ले चुके हैं, तो इनका हैंड होल्डिंग कैसे करना है ये हम कमीशन के स्तर पर तो इसका कुछ विचार भी कर रहे, आगे कुछ चीजें आएगी भी, लेकिन एक इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के लेवल पर इन चीजों को कैसे ऊपर लाया जाए इसके बारे में भी आप लोगों ने विचार करना चाहिए। ऐसे जो लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है उसका आगे उपयोग क्या होगा इसका भी आपने विचार करना चाहिए। और एक इनिशिएटिव कमीशन ने लिया है, वो है सभी प्राचार्य जितने हैं उनका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग नई दिल्ली में, नीपा में, और उसकी 11 बैचेस हो चुकी है। तो एक बैच में सर्वसाधारण रूप से 30-32 सहभागी रहते हैं और वो प्राचार्य रहते हैं। तो इतने प्राचार्यों का ये ट्रेनिंग हो चुका है। तो अब इसके आगे एक कदम जो है वो यूनिवर्सिटी कैसा ले सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास में आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में बचे हुए सभी लोगों को भी हमारा ट्रेनिंग देना हो जाएगा और करीब यूं समझिए कि सभी प्राचार्य जो है हमारे कॉलेजेस के, वो उनको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग क्या होता है इसकी जानकारी, एक मूलभूत जानकारी रहे। तो इसके लिए भी हम लोग कैसे इन प्राचार्यों को साथ में लेकर चल सकते हैं और कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं, इस पर भी आप लोग विचार कर सकते हैं। इसके अलावा सभी टीचरों के लिए हम लोगों ने एक स्कीम लॉन्च की है, उसको कहते हैं हम लोग पब्लिकेशन ग्रांट। अब पब्लिकेशन ग्रांट ऐसी कल्पना है कि यदि कोई काम करता है और पब्लिकेशन के लिए उसको जो भी खर्चा आता है उसके नियम बनाए गए हैं, वो सभी प्राचार्यों के पास और टीचरों के पास है। आप भी उसकी जानकारी कमीशन के वेबसाइट पर से ले सकते हैं। तो उनको हम लोग वो पब्लिकेशन के लिए जो खर्चा आता है वो देते हैं और अभी तक करीब 88 लोगों को हम लोगों ने पब्लिकेशन ग्रांट दी है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी कमीशन लेवल पर चलती है उसको हम आगे कैसे ले जाएं, उसका फायदा जो है वो हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कैसे हो, इसके बारे में आप सब लोग मिलकर विचार करें, सुझाव दें, ऐसी मेरी आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है। मैं पुनश्च एक बार विश्व आयुर्वेद परिषद का अभिनंदन करता हूँ ये कार्यक्रम के लिए, और इस प्रकार की जो चर्चा है वो आगे भी चले। कुछ सुझाव आपकी तरफ से हमारे लिए होंगे, कमीशन के लिए होंगे, वो भी आप जरूर देवे। इतना ही मेरा नम्र निवेदन है। पुनश्च आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। धन्यवाद सर। नेशनल कमीशन चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैद्य जयंत देव पुजारी जी का उद्बोधन हमने सुना, और जो कुलगुरु संभाषा परिषद के आयोजन का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि एनसीआईएसएम हमसे क्या चाहता है और हम एमसीआईएसएम से क्या चाहते हैं, तो ये दोनों ही पक्ष
हमारे यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन सर ने किया है, और निश्चित रूप से साल भर तक जो माननीय कुलपतियों की जो संभाषा चलेगी, इसके माध्यम से हम NCISM को उनके सब सुझावों को प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में कैबिनेट मिनिस्टर हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड आयुष, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, माननीय श्री इंद्र सिंह परमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आपका अभी थोड़े ही समय का कार्यकाल अभी प्रारंभ हुआ है, और उसमें आपने आयुर्वेद के लिए बहुत कुछ काम किया है। तो मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करने से पूर्व निवेदन करता हूं, डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत जी से आप माननीय मंत्री जी का परिचय दें, और उसके बाद में अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत जी। नमस्कार। इस आज परिषद की संभाषा में सभी उपस्थित प्रबुद्धजनों को मैं प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं जनप्रिय नेता आदरणीय इंद्र सिंह परमार जी, जो मुख्य रूप से ग्राम पोचानेर है, जो काला पीपल है, वहाँ के निवासी हैं, और बचपन से ही इनके विचार बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। इसी बात में देखते हुए 1989 से आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक के दायित्व में रहे, और विभिन्न प्रकार के कार्यों को हमने इसमें किया। साथ ही जो पिछला जो कार्यकाल इनकी जो शिक्षा इन्होंने अपनी प्राप्त की JNS महाविद्यालय सुजालपुर से, और उसके पश्चात स्नातक करने के उपरांत अपनी कानून की शिक्षा इन्होंने माधव महाविद्यालय उज्जैन से प्राप्त की। और साथ ही इस पूर्व का जो शिवराज सिंह जी की सरकार थी, पिछले भाजपा कार्यकाल में आप स्कूल शिक्षा मंत्री थे। उस स्कूल शिक्षा मंत्री में रहते हुए उन्होंने बहुत ही कहना चाहिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। सबसे बड़ा जो कार्य है CM राइज स्कूल की जो परियोजना है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लगभग 9,999 लगभग 10,000 स्कूलों को उन्नत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और साथ ही जो बीच में परीक्षाएं नहीं होती थी, एक पहले से 5वीं तक की और 8वीं तक की परीक्षाओं पर प्रतिबंध कर दिया गया था, उनको डायरेक्ट प्रमोशन दिया जाता था। माननीय मंत्री जी ने उन पर पुनः परीक्षाएं प्रारंभ की, जिससे कि बच्चों के सतत उनका मूल्यांकन होता रहे, ताकि उनको और आगे विकसित किया जा सके। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश सरकार में आयुष विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, और मैं पुनः पूरे मध्य प्रदेश विद्यार्थी परिषद में ही पूरे भारत की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी को, कि अभी इस छोटे से कार्यकाल में ही जो प्रारंभ ही हुआ है, अभी 11 आयुर्वेद महाविद्यालय की इन्होंने मध्य प्रदेश में नए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों की उन्होंने घोषणा की है। ऐसे मैं इस संभाषा में आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। आज विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा कुलगुरु संभाषा के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे मंत्री आदरणीय महेंद्र भाई मुंजपरा जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही जी, आ रही है। आदरणीय जयंत देव पुजारी जी, कुलगुरु प्रोफेसर अभिजीत जोशी जी, कुलगुरु प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी जी, कुलगुरु प्रोफेसर तन्मय गोस्वामी जी, आदरणीय वेद बलदेव धीमान जी, इस बैठक में जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव, सम्मानीय महेश जी, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले तो महेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि पिछले कोरोना काल के बाद में आयुर्वेद को फिर से विस्तार देने का काम जिस तेज गति के साथ किया जा रहा है, उसके कारण मध्य प्रदेश में भी आज हम कई कदम आगे बढ़ा चुके हैं। और मैं समझता हूं कि आयुर्वेद को जितनी और तेज गति के साथ बढ़ाने की जरूरत है, उसमें आज का ये कुलगुरु संभाषा महत्वपूर्ण कदम होगा। निश्चित रूप से जब तक हम आयुर्वेद पर रिसर्च बेस्ड व्यवस्था नहीं बनाएंगे, तब तक हम
अपने कार्यों को और श्रेष्ठतम पद्धति से लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने आयुर्वेद व्यवस्था करने की दृष्टि से, आयुर्वेद को रिसर्च बेस करने की दृष्टि से पतंजलि संस्थान के साथ में एमओए करते हुए पिछले महीने में हमने एमओए किया है और हम हमारे यहाँ रिसर्च के सिस्टम को और अच्छा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि केवल भारत ही नहीं, तो पूरी दुनिया में आयुर्वेद का प्रभाव बढ़ रहा है, लोगों की मांग बढ़ रही, क्योंकि सबसे सस्ता इलाज यदि हो सकता है तो आयुर्वेद से हो सकता है। और भारत के समाज में तो परंपरागत रूप से हर घर में आयुर्वेद होता था। कमी केवल ये है आज हमारे पास कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और इस कारण से हमें मान्यता नहीं मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से भारत में हम काम प्रारंभ किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम आयुर्वेद के जो उद्देश्य को पूरा करते हुए अपने देश के लोगों को निरामय की ओर एक प्रकार से अच्छा स्वस्थ रहे, उस दृष्टि से हम लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से हम उनको जागरण भी कर सकते हैं और उनका इलाज भी कराने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मैं सोचता हूं कि आज जिस प्रकार से विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा एक मंथन हो रहा है, ये मंथन समाज को भी और सरकार को भी दिशा देने का काम करेगा। हमने मध्य प्रदेश में अभी तक हमारे यहाँ 7 महाविद्यालय शासन द्वारा संचालित होते थे। इस वर्ष से ही हमने तय किया है भी हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर 11 और हम नए महाविद्यालय, जिस प्रकार से डॉक्टरों की कमी, आयुर्वेद डॉक्टरों की कमी होती थी, उसकी भी पूर्ति करने की कोशिश की है। अभी हमने 543 आयुर्वेद अधिकारियों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं। पीएससी के माध्यम से हमने उनका चयन किया है और नीचे तक लगातार विस्तार का काम आयुर्वेद का कैसे हो वो भी हम साथ साथ करते जा रहे हैं, ताकि हमारे आयुर्वेद के बारे में जो धारणा और पुष्ट होती जाए कि आयुर्वेद सस्ता इलाज है और इसके द्वारा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये सबको ध्यान में आने वाला विषय बन चुका है। मैं तो केवल यही कहूंगा कि एक पूरे इस अभियान में हम मध्य प्रदेश में को नए स्वरूप में आयुर्वेद के साथ में और ऊंचाई के साथ लेने का हमने संकल्प किया है। और इसलिए हम, जिस प्रकार मैंने कहा कि हम रिसर्च बेस आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं, तो उसको हमने एमओए करके आगे काम बढ़ाया है। लेकिन साथ ही हमने अभी आयुर्वेद फार्मेसी को समृद्ध करने के लिए भी हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। साथ ही हम सभी कॉलेजों में वनौषधि उद्यानों का विस्तार करने का हमने निर्णय किया है। मैं समझता हूं कि एक और हमने बड़ा, हमारे आयुष चिकित्सकों के सामने एक बड़ी दुविधा रहती थी, इनको सेकंड कैटेगरी का माना जाता था। हम आधुनिक चिकित्सकों के समान, यानी एलोपैथी के जो चिकित्सक है उनके समान ही सुविधाएं, वेतन उपलब्धता कराने पर भी हमने मध्य प्रदेश में काम प्रारंभ किया है। बहुत जल्दी हम इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार जिस गति के साथ, चाहे देश में हो चाहे राज्य में हो, आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम कर रही है, उसमें आप सब लोगों का मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सब राज्यों के साथ में अग्रणी राज्य की भूमिका में आ सकेगा। मुझे आपने आज आप सब लोगों के वर्चुअल जुड़ने से दर्शन के अवसर प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं महेश जी को भी धन्यवाद देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं और इस सफल आयोजन के लिए भी मैं बधाई देता हूं। हमारे जिस प्रकार से आयुर्वेद को एक निम्न स्तर की जो भावना लोगों के मन में पैदा कर दी गई थी, उस भावना से मुक्त करने का एक अभियान पूरे देश में चलेगा। तो मैं समझता हूं जैसा आज बहुत सारी जगह पर हमारे
आयुर्वेद के चिकित्सक ये सोचते हैं कि हमको एलोपैथी का भी काम करने का अवसर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इस भाव को हमको समाप्त करना होगा और हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों के मन में अपने पर स्वयं पर कॉन्फिडेंस कैसे आ जाए, ये भी एक वातावरण बनाने की जरूरत है। जब तक हम अपने पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दूसरे हमको सम्मान देने की स्थिति में नहीं आएंगे। इसलिए मेरा विश्वास है कि विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से हमारे सभी कुलगुरु और ऐसे सारे लोग मिलकर के और एक अभियान को गति दे करके हम भी अच्छे हैं, हम भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, इस प्रकार का एक आत्मविश्वास का भाव हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में आएगा तो निश्चित रूप से हम लोगों के जीवन में एक प्रकार के स्वास्थ्य का, भारत का जो भाव का निर्माण करना है, स्वस्थ भारत बन सकेगा जिसमें आयुर्वेद का एक बड़ा योगदान होगा। तो निश्चित रूप से भारत की परंपरा में सदियों से सबसे प्राचीनतम ये पद्धति है, उस पद्धति को फिर से हम अपने रिसर्च के आधार पर स्थापित कर सकेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम श्रद्धेय श्री इंदर सिंह परमार जी, आपका उद्बोधन निश्चित रूप से संपूर्ण आयुर्वेद जगत के लिए उत्साहवर्धक है। आज पूरे भारतवर्ष के चिकित्सक इसमें जुड़े हुए हैं और आपने जो मुख्य रूप से 3 बातें कही है, एक तो मध्य प्रदेश में 11 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ होने जा रहे हैं और साथ में सभी आयुर्वेद के चिकित्सकों को, शिक्षकों को समान वेतनमान दिया जाएगा एलोपैथी के समान, और 550 से अधिक मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति पीएससी के माध्यम से आपके नेतृत्व में होने जा रही है। विश्व आयुर्वेद परिषद आपका आभारी है और आपके इन प्रयासों से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी प्रदेश के रूप में स्थापित होगा। हम माननीय मंत्री जी के हृदय से आभारी हैं, उन्होंने प्रारंभ से जुड़ करके इतना समय दिया, सभी कुलगुरुओं को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और एक एक बात को अपने भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया और निश्चित रूप से इतने कम समय में आपने आयुर्वेद के लिए इतना अधिक कार्य किया है। 5 वर्ष के कार्यकाल में आयुर्वेद की दिशा और दशा दोनों आपके नेतृत्व में एक अलग स्वरूप प्राप्त करेगी। हम आपके पुनः हृदय से आभारी हैं। अब समय है अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपरा जी, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको सुनने का अवसर है, समय है, तो उनको आमंत्रित करने से पहले मैं निवेदन करूंगा विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय सचिव वैद्य सुरेंद्र चौधरी जी से माननीय मंत्री जी का परिचय दें। वैद्य सुरेंद्र चौधरी जी। नमस्कार सभी को। वैसे तो आदरणीय मंत्री महोदय इतने लोकप्रिय अधिकारी के रूप में रहे हैं, मंत्री के रूप में कम और अधिकारी के रूप में जो उन्होंने काम किया है, तो अधिकांश जुड़े हुए लोग उनके परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक परिपाठी होती है। माननीय मुंजपारा जी एक जाने माने शल्य चिकित्सक हैं जो भारत के गुजरात राज्य से आते हैं और बहुत एक व्यक्तित्व जिसको कहते हैं कि धरती से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ उनका व्यक्तित्व, कभी उनसे मिलिए, कभी उनसे बात कीजिए, तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने उच्च स्तर पर जाने के बाद भी इतने हम्बल रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक अलग व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। आदरणीय मुंजपारा जी पिछले 5 वर्षों से आयुष मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हुए जिस गति से आयुष विभाग को आगे लेकर चले हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है और मैं अधिक समय अपने और उनके बीच में ना लेते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूं कि अपने विचारों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री महोदय। विकास जी अनम्यूट करें। माननीय मंत्री जी डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपरा जी। सबको नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा आयोजित कुलगुरु संभाषा के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री
इंदर सिंह परमार जी, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, NCISM के अध्यक्ष आदरणीय वैद्य जयंत देव पुजारी जी, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कुलपति प्रोफेसर अभिजीत जोशी जी, कुलपति प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी जी, कुलपति वंदना मिश्रा जी, कुलगुरु संभाषा कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार पूर्व कुलपति वैद्य तन्मय गोस्वामी जी, पूर्व कुलपति वैद्य बलदेव धीमान जी, विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रोफेसर योगेश मिश्रा जी, प्रोफेसर गोविंद शुक्ला जी, प्रोफेसर महेश व्यास जी, प्रोफेसर कमलेश द्विवेदी जी तथा संपूर्ण भारतवर्ष से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आयुर्वेद के सभी चिकित्सक बंधु, सर्वप्रथम में विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी पदाधिकारी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कुलगुरु संभाषा के रूप में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है और इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से इतनी अधिक संख्या में आयुर्वेदिक चिकित्सक जुड़े हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये कार्यक्रम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि हर महीने भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति जी आयुर्वेद शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा और आयुर्वेद अनुसंधान में हमें और क्या करने की आवश्यकता है, इस विषय पर अपना उद्बोधन देंगे। मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी पदाधिकारियों को यह कहना चाहता हूं कि भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों के आदरणीय कुलपति के जो सुझाव आपको प्राप्त हो वो आप आयुष मंत्रालय को तथा NCISM को प्रेषित करें ताकि उन सुझावों के माध्यम से आयुर्वेद शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा और आयुर्वेद अनुसंधान के क्षेत्र नए सुधार किया जा सके। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आयुर्वेद का बजट पिछले कुछ वर्षों में आयुष मंत्रालय ने 6 से 7 गुना बढ़ाया है, जिसके कारण आप आयुर्वेद शिक्षा और आयुर्वेद चिकित्सा में नए नए अनुसंधान कर स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी भूमिका उत्साह के साथ निभा सके। मैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह जी परमार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही आयुर्वेद के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। श्री इंदर सिंह परमार जी मध्य प्रदेश में कई नए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस कदम के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश का आयुष मंत्रालय आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये संपूर्ण आयुर्वेद जगत के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी को पुनः बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में इतने अधिक संख्या में संपूर्ण भारतवर्ष से आयुर्वेद के चिकित्सक जुड़े हैं, इसलिए मैं इन सबको एक और प्रसन्न की बात बताना चाहता हूं कि अब आप सबके लिए मातृ भारत देश के द्वार ही नहीं खुले हैं, अपितु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय ने 100 से अधिक देशों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आरंभ हो, उसके लिए ग्लोबल समिट में माध्यम में सफल प्रयास किया है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व के द्वार आप सबके लिए खुल रहे हैं। मुझे अच्छे से ज्ञात है कि विश्व आयुर्वेद परिषद ने कोरोना काल में आयुष मंत्रालय के साथ जुड़कर बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि पूरे देश में आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी हार्दिक बधाई देता हूं तथा अपनी बात को यही पूर्ण करता हूं। जय आयुर्वेद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम सभी माननीय मंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। आज दिन भर से माननीय मंत्री जी अलग अलग मीटिंग में व्यस्त हैं, फिर भी उन्होंने समय निकाला, हम सबका मार्गदर्शन किया। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी MD कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आप गुजरात में एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, फिर भी आपके घर पर आयुर्वेद ही मुख्य रूप से चलता है। और आप आयुष मंत्रालय में पिछले 5 साल से आए हैं, लेकिन मैं आपके परिवार का कहना चाहूंगा, आपका पुत्र आयुष है और आपकी पुत्री का नाम आयुषी है, तो आपके परिवार में आयुष तो बहुत पहले से प्रारंभ है। और एक और बात है, जो मैडम हैं वो गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर से आयुर्वेद की स्नातक हैं, तो आपका पूरा परिवार आयुष का है। और माननीय मंत्री जी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में कई बार स्वयं कह चुके हैं
कि मैं भले एलोपैथी का हूं, लेकिन मेरे घर में आयुर्वेद ही चलता है। और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अभी 22 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में आयुर्वेद का सैटेलाइट सेंटर प्रारंभ हुआ और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों द्वारा वहां पर सेवा दी जाएगी। माननीय मंत्री जी के प्रयासों से, पूरे आयुष मंत्रालय के प्रयास से लबासना, जो लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी देहरादून में है, जहां सभी आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहां पर भी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का एक सैटेलाइट सेंटर माननीय मंत्री जी के प्रयासों से प्रारंभ हुआ है। और देश का सबसे बड़ा चिकित्सालय, माने जहां सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं, दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल, वहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की एक सैटेलाइट सेंटर माननीय मंत्री जी ने प्रारंभ करवाया है। तो हम आयुष मंत्रालय के बहुत आभारी हैं कि पिछले 10 वर्षों में और विशेष करके इन 5 वर्षों में जितना काम आयुष में हुआ है, शायद कई वर्षों तक नहीं हो सकता है। और हमने ये जरूर सुना था कि कई बार बजट 1% बढ़ता है, 2% बढ़ता है, लेकिन पिछले कुछ समय में आयुष का बजट, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया, 7 से 8 गुना ज्यादा बढ़ा चुके हैं। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद का यह स्वर्णिम काल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी ग्लोबल समिट में कहा था कि 25 वर्ष आयुर्वेद का स्वर्णिम काल है, तो निश्चित रूप से आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुर्वेद की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो रही है। विश्व आयुर्वेद परिषद हृदय से आपका आभारी है, माननीय मंत्री जी का, और माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश श्री इंदर सिंह परमार जी का भी, कि आप दोनों ने यहाँ पर उपस्थित होकर के विश्व आयुर्वेद परिषद के पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए सभी चिकित्सकों का, सभी कुलगुरुओं का और सभी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन किया, उत्साहवर्धन किया। एक बार पुनः धन्यवाद। डॉक्टर निकिता जी। नमस्कार। Thank you so much, sir. Now, moving ahead, may I please invite Govind Shukla, sir, for the concluding remarks. विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य गोविंद शुक्ल जी सादर आमंत्रित हैं इस पूरे कार्यक्रम पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आदरणीय गोविंद शुक्ला जी। यत् प्रभा पटलोद्भाषी भाषते अद्यापि भारतम आयुर्वेदात्मकम ज्योति ही शाश्वतम न प्रकाशितम। आज की इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास एवं आयुष राज्य मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुजपारा जी। आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री इंद्र सिंह जी परमार, उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन और आयुष मंत्रालय का जिन्होंने काम देख रहे हैं। एनसीआरसीएम के सम्माननीय चेयरमैन वैद्य जयंत देव पुजारी जी। देश भर से आज के इस कार्यक्रम में जिनका उद्बोधन हमें माननीय कुलपतियों से प्राप्त हुआ, ऐसे अभिजीत जी जोशी साहब, वंदना मिश्रा जी, बलदेव धीमान जी, तन्मय जी, हमारे परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी और देश भर से जो शोध अध्येता हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, जिस माध्यम से जुड़कर के विश्व आयुर्वेद परिषद के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के साक्षी बने हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से परिषद का जो उद्देश्य है, जो हमारे भारत की मौलिक संकल्पना है, पश्चिम सर्वदय सतम शृणुयाम सर्वदय शतम, 100 वर्ष जीने का जो स्वास्थ्य का संकल्प है, उस संकल्प को प्राप्त करने में जो आयुर्वेद की भूमिका है, उस आयुर्वेद की भूमिका जिस कालक्रम के प्रभाव से स्खलन हुआ, उसको पुनः स्थापित करने का विश्व आयुर्वेद परिषद का जो ध्येय है, वो विश्व आयुर्वेद परिषद का ध्येय शिक्षा के माध्यम से, शोध के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से कैसे हम आयुर्वेद को इस देश में और देश के साथ संपूर्ण वैश्विक स्तर पर पुनः प्रतिष्ठापित कर सकें। क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से ही समग्र स्वास्थ्य की जहां बात आती है, वो उसके मार्ग मात्र निकलता है तो आयुर्वेद से है। और विगत वर्षों में जैसा कि अभी हम सबने सुना, माननीय मंत्री जी के माध्यम से सुना, महेश जी ने बताया है कि बजट के प्रावधानों में आयुष को लेकर के जब हम वर्षों से अपनी हम 50 वर्ष और 55 और 58 वर्ष की उम्र तक पहुंच गए हैं, जहां पर 1%, आधा %, 2% की अभिवृद्धि बजट में आयुर्वेद की होती रही, लेकिन विगत 10 वर्षों में 6 से 7 और 8% की अभिवृद्धि
मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने रखा कि पूरे प्रदेश के अंदर 11 आयुर्वेद महाविद्यालयों की स्थापना। ऐसा जो एक भाव है, ये निश्चित रूप से इसका पूरे अध्ययन के बाद में है कि अगर संपूर्ण देश को और वैश्व को अगर समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी है तो आयुर्वेद के माध्यम से होगी। तो आपने सरकारी स्तर पर किस प्रकार से हमें राज्याश्रय, बिना राज्याश्रय के अभिवृद्धि नहीं हो सकती है। अब तक हम जहां पर पहुंचे हैं, किस गति से पहुंचे हैं, लेकिन किस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस गति के पीछे राज्याश्रय है। और निश्चित रूप से देश की भारत की सरकार, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय हम किस प्रकार से आयुर्वेद की गति को बढ़ा रहे हैं, उसी गति से राज्य सरकारें भी आयुर्वेद को बढ़ाने का जो काम कर रही है, उस गति में आयुर्वेद के साधकों को, आयुर्वेद के विद्यार्थियों को, आयुर्वेद के शोधकर्ताओं को मैं मूल रूप से इतना ही बात करूंगा कि चाहे वो गुणात्मक शिक्षा की बात हो, गुणात्मक रिसर्च की बात हो, आज के मापदंडों के अनुरूप जैसा कि माननीय कुलपति महोदय अभिजीत जी ने और वंदना मिश्रा जी ने कहा, ऐसे ही विचारों को लेकर के हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से उन विचारों को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में एनसीएसएम को, भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को हम अपने उन देश भर में जो ग्राउंड लेवल पर जो चिंतन है, जिन मनीषियों का, जिन कुलगुरुओं का वर्षों का अध्ययन है, उस अध्ययन के बाद में उनका आयुर्वेद को विकसित करने के लिए किस प्रकार का चिंतन है, उस चिंतन को एक हमारी एक, क्योंकि हम पूरे देश भर में जब काम करते हैं, चाहे विद्यार्थियों का क्षेत्र है, शिक्षकों का क्षेत्र है, निर्माताओं का क्षेत्र है, औषध उत्पादनकर्ताओं का क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में जहां-जहां भी आयुर्वेद के क्षेत्र में बढ़ने की बात होती है, वहां पर हम काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जिन मनीषियों का चिंतन है, जिन कुलगुरुओं का आयुर्वेद को लेकर के क्या चिंतन है, कैसे आयुर्वेद को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का जो भाव है, कैसे आयुर्वेद के माध्यम से जन-जन की सेवा हो सके और कैसे क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी रिसर्च की बात हो सके, तो ऐसे विषयों को लेकर के और कैसे उनको शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है, एक महत्वपूर्ण कदम विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से लिया गया। उस कदम का आज हम लगभग पूरे देश से 500 से अधिक इस कार्यक्रम के शुभारंभ के साक्षी हैं। आज ये सब साक्षी हैं, लेकिन आने वाले वर्ष के अंदर इन सभी के विचारों को समग्र रूप से एकीकृत करके और निश्चित रूप से हम अपने आगे की शिक्षण की पद्धति, चिकित्सा की पद्धति में कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो उसके सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी अतिथियों का, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र भाई मुजफ्फरा जी का, माननीय हमारे विशिष्ट अतिथि इंद्र सिंह जी का, जयेंद्र देव पुजारी जी का और देश भर से जुड़े हमारे सभी कुल गुरुओं को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और देश भर के जितने भी हमारे चिकित्सक शोधार्थी जो जुड़े हैं, उनके सामने जो सरकार का मंतव्य और विचार आज सरकारी स्तर पर हमारे सामने कितने अवसर प्राप्त हो रहे हैं। 100 से अधिक देशों में आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा का कार्य प्रारंभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे अवसर हमारे सामने आने वाले हैं, लेकिन उसी गुणात्मकता के साथ में, उसी क्वालिटी के साथ में हमको शोध आधारित आज के युगानुरूप परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद के मापदंडों को और आयुर्वेद को हमें रखना होगा। ये हमारा उत्तरदायित्व है। मैं सभी का अपने अपने हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर गोविंद शुक्ल जी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स के बाद में अब भारतीय संस्कृति के अनुसार यस्मिन कृतज्ञता नास्ति निरर्था तस्य सेवनम, कृत के प्रति कृतज्ञ होना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है और जिनका मार्गदर्शन हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है और वर्ष भर जिनके मार्गदर्शन से कार्य संपादित होगा, उन सबके प्रति तथा पूरे भारतवर्ष से जो इस कार्यक्रम में जुड़े, जिसके कारण ये कार्यक्रम आज का सफल हुआ है, उन सबके प्रति कृतज्ञ होना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है और आभार प्रदर्शन की इस परंपरा के परिपालन के लिए आमंत्रित हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय सचिव वैद्य शिवादित्य ठाकुर जी। आभार प्रदर्शन हेतु आज के कुलगुरु संभाषा में उपस्थित समस्त विद्वत गणों को मेरा सर्वप्रथम प्रणाम। विश्व आयुर्वेद परिषद विविध माध्यमों से आयुर्वेद को संपूर्ण रूप से विकसित करने का संकल्प लिया है और हमारा लक्ष्य है कि आयुर्वेद के अतीत को पुनरपि प्राप्त करना और उसी लक्ष्य के अंतर्गत यह कुल गुरु संभाषा का निर्णय हमने किया है।
हमारे संगठन में एक ऋषि पुरुष हैं जो सतत ऋषि की तरह चिंतना करते हुए किन किन माध्यमों से हम आयुर्वेद को विकसित कर सकते हैं, यह चिंतन करते रहते हैं, जिनका नाम है आदरणीय प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्र जी। और उनका जो चिंतन होता है, उनकी जो परिकल्पना होती है, उनकी परिकल्पना को आदेश मानकर हम सभी उस कार्य को पूर्ण करने में तन मन धन से जुड़ जाते हैं। और इसी की उपलब्धि आपके समक्ष आयुर्वेद के जीवन काल में, किसी भी संगठन के जीवन काल में यह प्रथम बार संपन्न होना प्रारंभ हुआ है कि कुल गुरु संभाषा, यह दृष्टि किसी की भी नहीं जा रही थी, लेकिन आयुर्वेद के विकास के लिए चिंतनशील इस संगठन ने कुल गुरु संभाषा का प्रारंभ आज से किया है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय महिला, बाल एवं आयुष मंत्री महेंद्र भाई मंजू भाई पारा, जो स्वयं में एक चिकित्सक हैं और उन्होंने आयुर्वेद के लिए इतना समय दिया, इतने अपने उद्गार व्यक्त किए। विश्व आयुर्वेद परिषद उनका हृदय से धन्यवाद अर्पित करता है। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मार्गदर्शन के लिए उपस्थित मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री आदरणीय इंदर सिंह जी परमार, आप जो आयुर्वेद के प्रति इतने अल्प काल में निर्णय लिए हैं, 11 आयुर्वेद के महाविद्यालय स्थापित करने का जो निर्णय लिए हैं, यह स्तुत्य है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपने एक बात कही कि आयुर्वेद में सभी सुविधाएं, वेतनमान इत्यादि हम समान करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए यह बतला दूं कि बिहार प्रदेश में पिछले 10 वर्ष पूर्व आयुर्वेद एवं एलोपैथ का वेतनमान समान हो चुका है और अभी 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति 2-4 दिन में होने जा रही है, जिसमें आधी संख्या आयुर्वेद के लिए है, अर्थात 1635 आयुर्वेद चिकित्सकों की नियुक्ति होने जा रही है। आपके इस निर्णय के लिए विश्व आयुर्वेद परिषद परिवार आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। आदरणीय देव पुजारी जी, जो भारतीय राष्ट्रीय आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति के, जिन्होंने आकर NCISM के माध्यम से किन किन विधाओं से आयुर्वेद के चिकित्सकों को नित्य नूतन विधा की ओर प्रगत कर रहे हैं, उनकी योजना बन रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी इस प्रगतिशील योजना से आयुर्वेद के शिक्षक, चिकित्सक, छात्र सभी लाभान्वित हो सकेंगे, क्योंकि आप तो वहां NCISM में अध्यक्ष हैं और वास्तव में एक सृजनशील व्यक्ति, चूंकि संगठन के व्यक्ति हैं, इसीलिए आपसे यह अपेक्षा तो हम कर ही सकते हैं। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। आज जिन 2 कुलगुरुओं ने शासन के माध्यम से, यह शब्द है कुलपति, लेकिन हमारी जो परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा है और कुल गुरु प्राचीन काल में होते थे, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने कुल गुरु संभाषा रखा। तो आदरणीय वंदना मिश्र जी और आदरणीय जोशी जी, जिन्होंने अपने अनुभव जन्य ज्ञान का प्राकट्य हमारे समक्ष करके हमारा मार्गदर्शन किया, और आयुर्वेद के लोग हम किन किन, हमारे पास कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, और
उन कमियों को दूर करके आयुर्वेद को पुनरपि शीर्ष स्थान पर कैसे ले जा सकते हैं, यह इस विधा का उद्घाटन आपने अपने वक्तव्य में, अपने उद्बोधन में किया है। इसलिए आप दोनों के प्रति भी हम आदर पूर्वक धन्यवाद अर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व कुलपति आदरणीय बलदेव जी धीमान, इस कार्यक्रम के सूत्रधार पूर्व कुलपति चिन्मय गोस्वामी जी, हमारे संगठन के आदरणीय योगेश चंद्र जी मिश्र, आदरणीय गोविंद शुक्ला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय महेश व्यास जी, जिनकी कल्पनाशीलता ने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया है, एवं संपूर्ण देश से उपस्थित शिक्षक, चिकित्सक, विद्वान, आचार्यगण एवं आज के कार्यक्रम को संचालित कर रही निकिता जी, ऐश्वर्या जी, आप सबों को विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सबों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने 3 तारीख को यह जो कुलगुरु संभाषा आयोजित करने का निर्णय लिया है, उस कार्यक्रम में आप पुनः पुनः पधारें। इसके लिए हम आप सभी को शुभकामनाएं प्रकट करते हुए संगठन के ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय आयुर्वेद, जय भारत, वंदे मातरम। विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी पदाधिकारियों को और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए ये जो आभार प्रदर्शन आदरणीय शिवादित्य ठाकुर जी ने किया, इसके लिए उनके प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शन, धन्यवाद। और जैसा कि हमारी परंपरा है, हम कल्याण मंत्र से आज के कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। तो सभी एक साथ कल्याण मंत्र बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामय, सर्वे भद्राणि, मां कश्चित् भाग भवेत्। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि।